यही बताए थे 6 दिसंबर यानी 13 दिन पहले कि यहाँ पर अगर किसी की जान जाती है तो इसके जिम्मेदार टीएमसी हैं बोलकर। तो आज अच्छी बात है कि टीएमसी की तरफ से यहाँ पर जो ड्रेनेज का काम था, जो ड्रेनेज 1 फीट से ज़्यादा हाइट थी उसकी, आज वो क्लियर कर चुके हैं। ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಗಜದಿನ ಅಣ್ಣವ್ರು ಏನದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲೇ ಏನೇ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ನ್ಯಾಯವಾದಂಥ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ತಕ್ಷಣವೇ ಬಂದು ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ಯಾವಾಗೇ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅವ್ರು ಬಂದು ಎದೆತಟ್ಟು ನಿಂತು ಅದು ಆಗೋವರೆಗೆ ಅದ್ರ ಫಾಲೋಅಪ್ನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಭಾಳ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳಬೇಕಾಗ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಟೀಚರ್ಸ್ ಕಾಲೋನಿ ವತಿಯಿಂದ. हमारा एक ही काम नहीं, हमारे जरिए जो जर्राप्पा साहब जो काम लिए, ये एक ही काम नहीं बल्कि हम और आप जानते हैं कि कईयों काम ऐसे इंडियन न्यूज़ जनता की आवाज़ के ज़रिए हो गए हैं। हाल ही में याद आया कि बताना पड़ रहा है कि राजेश्वर के जो पीडीओ हैं, जो हमारे दोस्त का एक मकान था वहाँ पर अब्दुल गनी साहब का, वो कहे कि गयासुद्दीन साहब 4-5 साल से ये प्रॉब्लम है, जो रोड पे नाले के जैसा पानी ठहरे। तो फिर सिर्फ राजेश्वर के पीडीओ को हमने व्हाट्सअप किए थे, फिर वीडियो हमें रिटर्न कॉल कर पूछ कर दूसरे दिन आकर वहाँ पर बुलडोजर से नाली सही कर वहाँ पर टिप्पर से मिट्टी डालकर रोड सही किए। बताने का मकसद ये है कि जब तक जो भी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं उनको हम नहीं बताएंगे तो फिर वो लोग कैसे काम करेंगे। ನಮ್ಮದು ಇಂಡಿಯನ್ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್ದವ್ರು ನಮ್ಮ ಗಯಾಸುದ್ದೀನ್ ಭಾಯಿ ಅವ್ರ ಮೂಲಕಲಿಂದ ಭೀ ದಂಧೆ ಆಗ್ಯದ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇವೆ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಇವತ್ತು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಯಾರ, ಅವ್ರದ್ದು ತೋಲ್ ಧನ್ಯವಾದಗಳವ. ಇವತ್ತು ಗಯಾಸುದ್ದೀನ್ ಭಾई ಅವರಿಗಾಗಲಿ ಮತ್ತು सी ओ ಮೇಡಮ್ ಅವರಿಗೆ ಇಬ್ಬರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳ್ತೇವೆ. तो देख सकते हैं कि किस तरीके से आज झर्रप्पा साहब और जितने भी उनके टीम यहाँ पर लोग हैं वो बुलाकर किस तरीके से इंडियन न्यूज़ जनता की आवाज़ के ज़रिए काम लिए। इसी तरह हम झर्रप्पा साहब की भी इंडियन न्यूज़ जनता की आवाज़ के ज़रिए हम उनको हिम्मत अफजाई करते हैं, उनके हौसले की, कि किस तरीके से मोहल्ले का काम आगे बढ़ चढ़कर काम किए। ऐसे ही हर मोहल्ले में आवाज़ उठाइए, जो भी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है उनको बोलिए, और वहाँ से भी काम नहीं होता तो लास्ट में हमारा और आपका प्लेटफॉर्म है इंडियन न्यूज़ जनता की आवाज़, हमें कॉल कीजिए, बस हम आपके पास हाजिर रहेंगे। और जब तक वो प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करते, इंडियन न्यूज़ जनता की आवाज़ पर बार बार उसको बताकर किस तरीके से काम लेना है वो लेने की पूरी कोशिश करेंगे। ಇವತ್ತು ಮಾಧ್ಯಮ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನಂದ್ರೆ, ಒಂದು 13 ದಿವಸ ಹಿಂದೆ ನಾವೊಂದು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡಿದೆವು ಪುರಸಭೆದವ್ರಿಗೆ. ಏನದಂದ್ರೆ ಡ್ರೈನೇಜ್ ರೋಡ್ಲಿಂದ ಮ್ಯಾಗ ಆಗಿತ್ತು, ಅದು ರೋಡ್ ಲೆವೆಲ್ ಮಾಡಿರಿ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಈಗ ಮಾಡ್ಯಾರ, ನಿಂದು ಮಾಡ್ಯಾರ ಪುರಸಭೆದವರು. ಸಿ ಒ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮದು ಇಂಡಿಯನ್ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್ದವ್ರು ನಮ್ಮ ಗಯಾಸುದ್ದೀನ್ ಭಾಯಿ ಅವ್ರ ಮೂಲಕಲಿಂದ ಭೀ ದಂಧೆ ಆಗ್ಯದ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇವೆ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಇವತ್ತು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಯಾರ, ಅವ್ರದ್ದು ತೋಲ್ ಧನ್ಯವಾದಗಳವ. ಇವತ್ತು ಗಯಾಸುದ್ದೀನ್ ಭಾಯಿ ಅವರಿಗಾಗಲಿ ಮತ್ತು ಸಿ ಒ ಮೇಡಮ್ ಅವರಿಗೆ ಇಬ್ಬರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಹಿಂಗೆ ಜನರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಲತ್ತಿತ್ತು, ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ರ. ಹಿಂಗೆ ಎಲ್ಲ ಹುಮ್ನಾಬಾದ್ದಾಗ ಏನೇನು ಸಮಸ್ಯೆಗಳವ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಎಲ್ಲಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಿಕೊಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇವೆ. ನಾವು ಹೇಳೋದಕ್ಕಿಂತ ಪहिले ನೀವು ಮಾಡಿದ್ರೆ ತೋಲ್ ಚಲೋ ಅದ. ಎಲ್ಲದಕ್ಕೆ ಮೇಲಧಿಕಾರಿಗಳು ಬರ್ಬೇಕಂತ ಏನು ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಇಚ್ಛೆಲಿ ನೀವು ಮಾಡಿರಿ. ನಮ್ಮಂಥ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರುಗಳು ಹೇಳಿದ ಮ್ಯಾಗ ನೀವಾಗಿ ಮಾಡಿರಿ. ಅವ್ರು ಹೇಳತಕ್ಕ ನಾವು ಬರಲ್ಲ, ನೀವು ಅವ್ರು ಹೇಳತಕ್ಕ ನಾವು ಬರಲ್ಲ ಅಂತ ಇವೆಲ್ಲ ಮಾತು ಹೇಳಬೇಡ್ರಿ. ಇವೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೇದು ಕೆಲಸ ಮಾತ್ರ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಿರಿ ಅಂತ, ಹಿಂಗೆ ಹುಮ್ನಾಬಾದ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಕಲ್ಲು ರೋಡ್ ವರೆಯಲಿಂದ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಸರ್ಕಲ್ವರೆಗೆ ಒಂದು ಟೀಚರ್ಸ್ ಕಾಲೋನಿ ರೋಡ್ ಇದೆ. ಆ ರೋಡಿನಲ್ಲಿ ಡ್ರೈನೇಜು ಕೆಲವೊಂದು ನಡುವೆ 1 ಫೀಟು ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಏನದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವರು ಡ್ರೈನೇಜ್ದವರು ಅದು ಹಾಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮ ಭಾಳಷ್ಟು ಗಾಡಿಗಳಿಗೆ, ನಮ್ಮ ಗೋವಿಂದ ರೆಡ್ಡಿ ಅಣ್ಣವ್ರ ಗಾಡಿ ಭಾಳಷ್ಟು ಲಾಸ್ ಆಗಿದೆ. ಅದು ಗೊತ್ತು, ಭಾಳ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಭಾಳ ಘಟನೆ ಆಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಬಟ್ ದೇವ್ರು ಅವ್ರ ಕಡೆ ಇದ್ದಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಅವ್ರದ್ದು ಅಷ್ಟೇ ಲಾಸಿನ ಮೇಲೆ ಮುಗಿದೋಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನದ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಒಂದು 12 ದಿವಸದಿಂದ ನಮ್ಮ ಜರಪ್ಪ ಕಟ್ಟಿಮನಿಯವರು ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯನ್ ನ್ಯೂಸ್ ಗಯಾಸುದ್ದೀನ್ ಅಣ್ಣವರಿಗೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿ, ಈ ರೀತಿ ಭಾಳ ಮಂದಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ ಅಂದಾಗ ಅವ್ರು ತಕ್ಷಣವೇ ಬಂದು ಅದು ನ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಏನದ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಮುಖ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗೆ ತಲುಪಿಸಿ, ಅದ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ತಪ್ಪು ಸಂದೇಶ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ, ಇದು ಮೊನ್ನೆ 3 ದಿವಸ ಸತತವಾಗಿ 2 ಜಾಗದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ನೆಲದ ಸಮಾನ ರೋಡಿನ ಲೆವೆಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಮತ್ತೇನಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಮುಂದೇನೆ 2-3 ಜಾಗದಲ್ಲಿದೆ ಇದೇ ರೀತಿ. ಬಟ್ ಅದು ಭೀ ಮುಖ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಭಾಳ ಇದರಿಂದ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಕಳಕಳಿಯಿಂದ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಸರಿಪಡಿಸ್ಬೇಕು. ಅದನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನು ಹುಮ್ನಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಭಾಳಷ್ಟು ಜಾಗದಾಗಿದೆ. ತಮಗೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿದೆ, ತಾವು ಮಹಿಳಾ ಅಧಿಕಾರಿ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಮುಂಜಾನೆ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಎದ್ದು
ಸತತವಾಗಿ ಓಡಾಡ್ತೀರಿ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಕೂಡ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಮತ್ತು ಹುಮ್ನಾಬಾದ್ ಜನತೆ ಕೂಡ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಭಾಳ ಒಳ್ಳೆಯರಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಏನದ ಅಂತಂದ್ರೆ ತಮಗೂ ಎಲ್ಲ ತಾವು ಮನ್ ಬಂದಿದ್ರಿ, ತಮಗೇನೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಏರಿಯಾದ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಓಡಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ತಾವೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂತ ನಮಗೆ ಭಾಳ ಇದಿದೆ. ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಗಯಾಜುದ್ದೀನ್ ಅಣ್ಣವ್ರು ಏನದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲೇ ಏನೇ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ನ್ಯಾಯವಾದಂಥ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ತಕ್ಷಣವೇ ಬಂದು ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ಯಾವಾಗೇ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅವ್ರು ಬಂದು ಎದೆತಟ್ಟು ನಿಂತು ಅದು ಆಗೋವರೆಗೆ ಅದ್ರ ಫಾಲೋಅಪ್ನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಭಾಳ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳಬೇಕಾಗ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಟೀಚರ್ಸ್ ಕಾಲೋನಿ ವತಿಯಿಂದ. ಅದಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಇನ್ನು ಎಲ್ಲೇ ಏನೇನು ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಅದು ಮುಖ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಬಂದು ನೋಡಬೇಕು, ನೋಡೋದು ಸರಿಪಡಿಸ್ಬೇಕು. ಇದು ಏನು ಮಾಡಿದಾರ ಇದು ಭಾಳ ಜನರಿಗೆ ಫೇಲ್ ಆಗಿದೆ. ಇದು ಫೇಲ್ ಆದರೂ ಕೂಡ ಯಾರೂ ನೋಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು. ಪೈಲೆ ಏನು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿದ್ದರು, ಅದ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಅದೇ ರೀತಿ ನಡುವೆ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿದ್ದಾಗ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಅನಾಹುತ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭ ಬರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು 2-3 ಜಾಗದಲ್ಲಿದೆ, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಬೇಕು. ಮತ್ತು ಹೇಳಿ ನಾವು ಧನ್ಯವಾದಗಳು. इंडियन न्यूज जनता की आवाज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं गयासुद्दीन। आज इस वक्त हम हुमनाबाद के कल्लूर रोड टीचर्स कॉलोनी में, तो हम आपको बताए थे 6 दिसंबर को हमारे झर्रप्पा साहब हमें कॉल कर बुलाए थे कि बताए कि गयासुद्दीन साहब हमारे इस एरिया में 6 से 7 साल से इस रोड पे ड्रेनेज है, कम से कम 1 फीट से ज़्यादा उसका हाइट है। इसकी वजह से कई एक्सीडेंट यहाँ पर हो चुके हैं, लिहाजा आप आओ बोलकर वो बार बार हमको बोल रहे थे। फिर इसके बाद में हम यहाँ पर आए। आने के बाद में 6 दिसंबर को ये यहाँ की हालत बताए थे हुमनाबाद टीएमसी को कि किस तरीके से यहाँ का प्रॉब्लम है, और ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं किया जाता तो इंडियन न्यूज़ जनता की आवाज़ पर इस प्रॉब्लम को बार बार बताया जाएगा। इस तरीके से न्यूज़ पब्लिश हुई थी, हम और आप देखे थे। तो हम आज टीएमसी का शुक्रिया अदा करते हुए बताएंगे कि आज इस कल्लूर रोड पर यहाँ पर ड्रेनेज का काम यहाँ पर किए हैं, मतलब जो हाइट था उसको हाइट को निकाल कर रोड लेवल का काम किए हैं, ताकि जाने आने वालों को कोई तकलीफ ना हो सके। इसलिए ये प्रॉब्लम को आज सॉल्व किया गया है। हम यही कहेंगे कि अगर किसी एरिया में प्रॉब्लम है तो किसके ज़रिए काम होता है, इसके रिलेटेड कौन है, कौन काउंसलर है, कौन यहाँ पर टीएमसी में सीईओ है, चेयरमैन है, वाइस प्रेसिडेंट है, जो भी इसके रिलेटेड हैं, स्टेप बाय स्टेप वो इस तरीके से काम किए तो एरिया का भी काम होता है। जैसे कि झर्रप्पा साहब ने किए कि ये काम किससे होता है, कहाँ से होता है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर वो उनकी मेहनत की वजह से हमारा तो इंडियन न्यूज़ जनता की आवाज़ ये प्लेटफॉर्म है। बस इस प्लेटफॉर्म को कैसे यूज़ करना है ये आपके हाथों में है, क्योंकि हमारा एक ही काम नहीं है। हमारे ज़रिए जो झर्रप्पा साहब जो काम लिए ये एक ही काम नहीं, बल्कि हम और आप जानते हैं कि कईयों काम ऐसे इंडियन न्यूज़ जनता की आवाज़ के ज़रिए हो गए हैं। हाल ही में याद आया कि बताना पड़ रहा है कि राजेश्वर के जो पीडीओ हैं, जो हमारे दोस्त का एक मकान था वहाँ पर अब्दुल गनी साहब का, वो कहे कि गयासुद्दीन साहब 4-5 साल से ये प्रॉब्लम है, जो रोड पे नाले के जैसा पानी ठहरे। तो फिर सिर्फ राजेश्वर के पीडीओ को हमने व्हाट्सअप किए थे, फिर पीडीओ हमें रिटर्न कॉल कर पूछ कर दूसरे दिन आकर वहाँ पर बुलडोज़र से नाली सही कर वहाँ पर टिप्पर से मिट्टी डालकर रोड सही किए। बताने का मकसद ये है कि जब तक जो भी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं उनको हम नहीं बताएंगे तो फिर वो लोग कैसे काम करेंगे, और बताना हमारा काम है, हमारा और आपका काम है, तो बताकर काम लें। तो देख सकते हैं कि किस तरीके से आज गुंडू रेड्डी साहब भी यहाँ पर हैं, और गोविंद साहब की भी यहाँ पर गाड़ी शायद यहाँ पर ड्रेनेज से जाकर टकराई थे, वो काफ़ी नुकसान हो गया था। अच्छी बात तो ये रही कि कोई यहाँ पर जानी नुकसान नहीं हो गया। और इस एरिया में 1 नहीं 2 नहीं बल्कि झर्रप्पा साहब बताए कि कई एक्सीडेंट यहाँ पर हो चुके हैं, बस माली नुकसान हो गया, जानी नुकसान नहीं हुआ। हम यही बताए थे 6 दिसंबर यानी 13 दिन पहले कि यहाँ पर अगर किसी की जान जाती है तो इसके ज़िम्मेदार टीएमसी हैं बोलकर। तो आज अच्छी बात है कि टीएमसी की तरफ से यहाँ पर जो ड्रेनेज का काम था, जो ड्रेनेज 1 फीट से ज़्यादा हाइट थी उसकी, आज वो क्लियर कर चुके हैं। हम आपको बताना चाहेंगे कि देखिए किस तरीके से आज ये ड्रेनेज है जो रोड के लेवल यहाँ पर किया जा रहा है। और इस मोहल्ले वालों का कहना है कि 30 से 40 साल हो गया इस बस्ती को बसकर, यहाँ पर सही से ना ड्रेनेज है ना यहाँ पर रोड है, और ये भी रोड बनी है तो हाल में शायद बनी है, और इस रोड को भी पूरा कंप्लीट नहीं किया गया। लिहाजा वो भी इस मोहल्ले वाले, इस एरिया वाले कह रहे हैं कि वो भी रोड को यहाँ पर कंप्लीट किया जाए बोलकर। तो देख सकते हैं कि किस तरीके से आज झर्रप्पा साहब
और जितने भी उनके टीम यहाँ पर लोग हैं वो बुलाकर किस तरीके से इंडियन न्यूज़ जनता की आवाज़ के ज़रिए काम लिए। इसी तरह हम जर्रप्पा साहब की भी इंडियन न्यूज़ जनता की आवाज़ के ज़रिए हम उनको हिम्मत अफ़ज़ाई करते हैं, उनके हौसले की, कि किस तरीके से मोहल्ले का काम आगे बढ़ चढ़कर काम किए। ऐसे ही हर मोहल्ले में आवाज़ उठाइए, जो भी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है उनको बोलिए, और वहाँ से भी काम नहीं होता तो लास्ट में हमारा और आपका प्लेटफॉर्म है इंडियन न्यूज़ जनता की आवाज़, हमें कॉल कीजिए, बस हम आपके पास हाजिर रहेंगे। और जब तक वो प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करते, इंडियन न्यूज़ जनता की आवाज़ पर बार बार उसको बताकर किस तरीके से काम लेना है वो लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो इसी तरह के न्यूज़ देखने के लिए बने रहिए इंडियन न्यूज़ जनता की आवाज़ पर। थैंक यू। दशहरा और दीपावली फेस्टिवल के लिए एसएस पारा वेडिंग मॉल गांधी चौक छुड़गुप्पा में मिलेंगे स्पेशल कांचीवरम, धर्मावरम, मैसूर क्रेप सिल्क साड़ीज, रायमंड, आदित्य बिरला, सेलिनो शूटिंग्स, कोट सूट, शेरवानी, ब्लेजर, कुर्ता पजामा, कॉट सेट, फैंसी ड्रेस के अलावा बच्चों से लेकर बड़ों तक के 3 रुपया कैप से लेकर 35,000 की साड़ी तक के हर वो आइटम सिर्फ चुड़ुप्पा ही नहीं, हुमनाबाद के बस स्टैंड के बाजू एसएस पारा शॉपिंग मॉल में भी मिलेंगे। अपने सपनों को कहें अब यस। जी हाँ, हुमनाबाद के सिंदीन खरा क्रॉस शाकुंतला पाटिल कॉलेज के पीछे सुभाष डेवलपर्स, केतकी डेवलपर्स यानी संगमेश चिद्री लाए हैं फिर से जनता के सपनों का ग्रीन विला यानी प्लॉट्स, जिसमें अंडरग्राउंड ड्रेनेज, सीसी रोड, प्लेग्राउंड, पावर हेड, गार्डन, एलईडी लाइट्स, वाटर सप्लाई के अलावा हर वो फैसिलिटी। तो देर किस बात की, आए अपने ख्वाबों के घर बनाने में जल्दी करें, क्योंकि आपके सपने हमारे अपने।